انہوں نے وہ بینک میں ڈال دی ہے، اس کے سود سے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے یا کوئی اور راستہ دیکھیں؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی بیوہ ہے، ان کے پاس آخری رقم 15 لاکھ ہے، انہوں نے بینک میں ڈال دیے، اس سے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے مجبوری میں یا کوئی اور راستہ دیکھیں؟ بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے۔ سود کا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ کسی بھی قیمت پہ اسلام برداشت نہیں کرتا۔ ان پیسوں کو ہی کھانا شروع کر دیں اور جب وہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ ان کا راستہ کوئی اور نکال دے گا، یا ان سے کوئی بزنس کر لیں، گھر میں مشینیں لگا لیں، لڑکیوں کو ساتھ بٹھا لیں، سلائی کی مشینیں لگا لیں، کڑھائی کی مشینیں لگا لیں، اور کوئی بزنس کر لیں، پاپڑ ہیں، چپس ہیں، یہ بنانے شروع کریں۔ بہت بڑے بڑے کام ہیں آج کل جو عورتیں کر رہی ہیں، گھر میں ہی پردے میں رہتے ہیں۔ تو لیکن یہ جو حرام کام ہے کہ آخری رقم ہے، اور یہ تو کسی بھی قیمت میں دیکھو، حرام صرف ایک شکل میں قرآن اجازت دیتا ہے کہ یا تو آپ کی جان پہ بنی ہے کہ آپ کو کفر یا کلمہ کہہ کے اپنی جان بچانی پڑے، یا آپ کی جان پہ ایسی بنی ہے کہ آپ بھوکے مر جائیں گے، وہاں بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ تھوڑا سا سور کھا لیں اور اپنی جان بچا لیں، اسی طرح تھوڑا سا سود کھا لیں، جان بچا لیں، اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں ہے بالکل۔ جنازہ تیز لے کر جانا چاہیے یا ہلکے؟ ان کا سوال یہ جنازہ تیز لے کے جانا چاہیے ہلکے؟ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ تیز لے جانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ جو نیک روح ہوگی وہ جلدی جلدی اپنی منزل پہ پہنچے، اور جو بد روح ہوگی وہ کیوں اپنے کندھے پہ تم اتنی دیر تک اٹھائے پھرے، اسے لے جا کے ڈالو اس کی قبر میں۔ ہمارے یہاں تو یہ سنا نا میں نے کہ بھائی جنازہ ہلکے ہلکے لے کے چلو، کیوں تیزی مچا رکھے؟ نبی کی تعلیم کے خلاف ہے یہ بات بالکل۔ ہمیشہ جنازہ تیزی سے لے کے جاؤ اور اپنی منزل پہ پہنچا دو۔ جی بھائی۔ لڑکی کے والدین کی طلاق کے بعد لڑکی اپنی نانا نانی کے پاس رہی اور نکاح کے وقت والدین کی جگہ نانا نانی کا نام لکھوایا گیا، کیا نکاح ہو گیا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی، نہیں، طلاق، طلاق، اچھا، اور لڑکی جو ہے وہ نانا نانی کے پاس، نانا نانی کے پاس چلی گئی، جی تو وہ دوسرا نکاح ہوا اس میں؟ نہیں، لڑکی کی پھر شادی ہوئی، لڑکی کا جب شادی کا وقت آیا تو والدین کی جگہ نانا نانی کا نام لکھوا دیا۔ اچھا، اس میں نکاح نامے میں جی دیکھو اگر یہ مسئلہ طے لکھوا دیا کہ بھائی کاغذ آگے بننے ہوتے ہیں، نکاح نامہ ہے اور آگے کس طرح سے ہوگا، تو پھر تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ جان بوجھ کے کام کیا گیا کہ بچی کو جھوٹ بول کے بتایا گیا تیرے ماں باپ یہ نہیں ہے یہ ہیں، تو یہ تو حرام ہے بالکل، کوئی نکاح وکاح نہیں ہوا۔ جھوٹ اسلام میں اس طرح سے بالکل منع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب بدلنے کو، یہ نسب بدلنا ہوا۔ اسلام میں بالکل کوئی اڈاپٹ چائلڈ کا تصور نہیں ہے، بچوں کو بتا دینا چاہیے کہ تیرے یہ والد یہ نہیں ہیں جن کے گھر میں تو پل رہا ہے۔ دیکھو میں نے آپ کو بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں کو بچے نہیں ہوئے، انہوں نے تو کئی بچے گود نہیں لیے۔ نبی نے ایک بچے کو گود لیا تھا، اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو اللہ نے وہی اتار دی تھی، یہ تیرا منہ بولا بیٹا، تیرا سگا بیٹا نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید بن محمد کہلانے لگے تھے وہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کر دیا، تو بالکل جڑ کاٹ دی تھی اس بات کی۔ تو اس لیے اگر آپ کی آزمائش بے اولاد رہنا ہے تو آپ اگر مان لو اڈاپٹ کرتے بھی ہیں نا کوئی بچہ، تو آپ اسے شروع سے بتا کے چلیں کہ ہم تیرے والدین نہیں ہیں، تب آپ جائز اس پہ ہو، ورنہ اگر آپ اپنا نام اسے دے رہے تو یہ بالکل ناجائز بات ہے، اسلام کے خلاف بات ہے۔ اسی سے ملتا ہوا سوال ہے، لڑکا لڑکی چھپ کے نکاح کر لیں اور اس میں ایڈریس غلط لکھوا دیں تو ہو جاتا ہے نکاح؟ تو ان کا سوال ہے لڑکا لڑکی چھپ کے نکاح کر لیں، ایڈریس غلط لکھوا دیں، وہ تو ایک الگ چیز ہو گئی، نسب تو نہیں بدلا نا اس میں، ویسے تو جھوٹ ہے یہ بھی، لیکن یہ چل جائے گی بات، نسب بدلنے کی بات ہو رہی نا وہاں، تو آپ کو جنازے میں زیادہ بھیڑ، ان کا سوال یہ ہے جنازے میں زیادہ بھیڑ ہونا کیا مغفرت کی نشانی ہے؟ بھائی اس میں ایک چانس یہ ہے کہ اس میں زیادہ مومن ہونے کا چانس ہوتا ہے، حضور نے فرمایا جہاں 40 مومن ہوں گے نا وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں، ورنہ آج کل تو پیسے والوں کے جنازے میں بہت بھیڑ ہوتی ہے، کوئی کتنا ہی متقی ہو غریب اس کے جنازے میں کہیں بھیڑ نہیں ہوتی، اس سے نہیں فرق پڑتا۔ ہاں جی، رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کب تک رکھ سکتے ان کا سوال یہ رمضان کے چھٹے ہوئے روزے کب تک رکھ سکتے ہیں؟ اگلے رمضان سے آنے سے پہلے رکھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو 6 روزے بعد کے ہوتے ہیں سر سعید کے اسی میں ضروری ہوں، چاہے وہ عورتوں کے بہنوں کے روزے ہوں اور چاہے وہ مردوں کی کسی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے ہوں۔ ہاں جی، سلام کے ساتھ مصافحہ ضروری ہے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں یا دونوں ہاتھ سے، کیا ہاتھ چوم بھی سکتے ہیں؟ 3 سوال ہیں بھائی ان کے۔
ایک تو سلام کے ساتھ مسافہ ضروری ہے، سلام کے ساتھ مسافہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی کر لے بہتر ہے، نہیں کرے کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے کرے دونوں ہاتھ سے؟ ایک ہاتھ سے کرے مسافہ، دونوں ہاتھوں سے کرے۔ بھائی جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے، اور نبی نے 2 ہاتھ سے بھی کیا اور ایک ہاتھ سے بھی کیا، اس لیے اس میں کوئی بندش نہیں ہے، جیسے مرضی مسافہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا، اوپر سے اپنا دوسرا ہاتھ بھی لگا دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہاتھ چومنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو اسے بریلیت کہہ دیا جاتا ہے نا، آپ کو کتنا لاڈ آتا ہے اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا یا اپنے بچوں کا، آپ ان کے ہاتھ یا ماتھا بھی چومتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ جب آتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ماتھا چومتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، تو کوئی حرج نہیں ہے ہاتھ چومنے بھی۔ اگر آپ کے کوئی بزرگ ہیں، آپ کے کوئی پیر ہیں، یا آپ کے کوئی استاد ہیں اور آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے ہاتھ چومنے کو، مگر جھکنا نہیں ہے ان کے آگے، جھکنا صرف اللہ کے آگے، آپ ان کا ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور چوم لو۔ میرے ایک آخری جو پیر تھے جن سے میں بیعت ہوا آخر میں، شاہ ابرار اللہ صاحب تھے ہردوئی کے، جب انہوں نے مجھے بیعت کر لیا 2-3 دن انتظار کے بعد، تو میں بڑا جذباتی سا ہو گیا، تو ان کے بہت ملائم ہاتھ تھے، میں نے ان کے ہاتھ میں لے رکھا تھا اس ٹائم، تو پھر میری طبیعت چاہیے میں ہاتھ نہیں بلکہ ان کے پیر چوموں، انہوں نے پیر کے اوپر پیر رکھا ہوا تھا، میں نے ان کا پیر چوما، اور وہ حنفی تھے دیوبندی پیور، یہ جو اشرف علی تھانوی صاحب تھے نا، ان کے خلیفہ تھے، ہردوئی رہتے تھے، تو انہوں نے مجھے منع نہیں کیا پیر چومنے کو بھی۔ تو اس لیے یہ سب محبت کی باتیں ہیں، اس میں کہیں بریلیت یا دیوبندیت نہیں آتی۔ جیسے منڈے میں کہتے ہیں کہ کھانا کھانا ہے، اور میت کے اندر جو کھانا بنتا ہے تو کھانا بہت کہتے ہیں کہ کھانا ہے، بہت کہتے ہیں کہ نہیں کھانا۔ ان کا سوال یہ ہے منڈے کا کھانا اور میت کا کھانا کیسا ہے؟ بھائی دیکھو، میت کا کھانا تو اس کے گھر والوں کے لیے ہے، صرف یہ حکم ہے کہ گھر والوں کو کیونکہ غم ہوتا ہے، کھانا بنا کے محلے والے یا کوئی رشتہ دار بھیجتے، وہ صرف ان کے گھر والوں کے لیے ہوتا ہے۔ منڈے کا کھانا جو ہے وہ ایک آپ کا علاقائی روایت ہے، میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن جو ولیمہ کرنا ہے وہ سنت ہے، منڈے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ منڈا کر رہے ہیں ولیمہ نہیں کر رہے تو آپ گناہ گار ہیں، لیکن آپ منڈا بھی کر رہے ہیں ولیمہ بھی کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے بالکل، کیونکہ تھوڑی سی جگہیں رہ گئی جو آپ اکٹھے ہو جاتے ہو۔ آپ یہ دیکھو نا، موبائل نے اور ٹی وی نے ہمیں تباہ کر دیا، اپنے کمروں میں بند کر دیا، کیونکہ تھوڑی سی ایسے فنکشن رہ گئے، منڈا ہے، شادی ہے، اگر ساری یہ گیدرنگ ہو جائے، لوگ اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کا حال جان لیں، محبت کر لیں، کوئی حرج نہیں میرے نزدیک۔ کیا باپ سے اپنے حصے کی جائیداد مانگنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، باپ سے اپنے حصے کی جائیداد مانگنا ٹھیک ہے؟ ناجائز ہے بھائی، بالکل، جب تک باپ زندہ ہے مال سارا اس کا ہے، وہ اپنی مرضی سے دے تو بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے تو وہ بالکل ناجائز کام کرتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ اگر ہاں اس کی ڈیتھ کے بعد آپ کا بالکل حصہ ہو گیا، اس میں کوئی آپ کا بھائی یا آپ کی بہن یا کوئی رشتہ دار اس میں اڑنگا اڑاتا ہے، تو پھر آپ بالکل عدالت تک جا سکتے ہو، حق سے مانگ سکتے ہو، کیونکہ پھر آپ کا حق ہے، لیکن جب تک باپ زندہ ہے آپ کا حق نہیں ہے، خوشی سے ٹھیک، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ ان کا سوال ہے فلسطین کی آخری جنگ کون سی آیت میں ہے؟ ایسی کوئی آیت قرآن میں وضاحت کے ساتھ نبی نے بیان نہیں کی کہ فلسطین کی کوئی آخری جنگ نہیں ہوگی۔ یہ ضرور فرمایا کہ آخری زمانے تک جہاد ہوتے رہیں گے، اب وہ کون سے علاقے میں ہوتے رہیں گے یہ کچھ نہیں پتا، ہو سکتا ہے فلسطین میں ہوتے رہیں۔ بہو کے اوپر ساتھ سے کتنے ذمہ دار ہیں، جبکہ وہ بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈانٹ ڈپٹ بھی رکھتی ہیں اور اپنے حکمرانی دکھانا چاہتی ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بہو کے اوپر ساس کی کتنی ذمہ داری ہے، جبکہ ساس ڈانٹ ڈپٹ بھی رکھتی ہے؟ بھائی بالکل کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بالکل بھی۔ کمٹمنٹ جو کیا گیا نکاح کے ٹائم ہسبینڈ سے، وہ نان نفقے کا کمٹمنٹ اس کے ساتھ ہے، اس کے ماں باپ اس میں نہیں آتے۔ اگر یہ خدمت کرتی ہے اپنے ساس سسر کی تو اس کی مہربانی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ماں جو ہے دودھ پلانے تک کے پیسے لے سکتی ہے اپنے خامن سے، بچے کو، وہ خامن کا بچہ ہے۔ آپ کو یہ آیت پتہ ہی نہیں ہوگی، قرآن کی آیت بتا رہا میں آپ کو، تو ماں باپ تو کہیں آتے ہی نہیں، اگر وہ ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو اس کا احسان ہے۔ یہ بات بتا دوں میں آپ کو، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے نا ہسبینڈ اپنی بہو پہ، بیوی پہ، کہ ان کی خدمت کر، تو وہ اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اس کی۔ عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اپنی ساس سسر کی خدمت کرنا، اس کے ماں باپ ہیں وہ، اگر وہ محبت کرتے ہیں، ٹیک اینڈ گیو والا معاملہ ہے، جیسے وہ دیں ویسا یہ کرے ان کے ساتھ، اگر وہ اس کی محبت کرتے ہیں یہ بھی کرے، وہ نہیں کرتے تو یہ الگ ہو جائے۔ ہاں جی
क्या मोटरसाइकिल पर स्टंट करने पर या तेज चलाने पर एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो क्या ये तकदीर है? बड़ा अच्छा सवाल है। इनका सवाल यह है, मोटरसाइकिल पे बड़ा स्टंट करते हैं लोग और बहुत स्पीड में मोटरसाइकिल चलाते हैं, अगर उसमें एक्सीडेंट में डेथ हो जाए तो क्या ये तकदीर है? तकदीर नहीं है भाई, ये नसीब है। मैंने शायद पिछले हफ्ते उससे पिछले हफ्ते आपको तकदीर और नसीब का फ़र्क बताया था। तकदीर फिक्स है, नसीब अल्लाह ने हमारे हाथ में दे रखा, जैसा मर्जी हम बना लें। जब अल्लाह ने मना किया कि अपनी जान को हलाकत में ना डालो, एक स्पीड तय कर दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप हल्की स्पीड में भी आपको कोई पीछे ठोक दे, आपकी डेथ होगी तो आप शहीद हैं। लेकिन अगर आप ओवर स्पीड जा रहे हैं या आप स्टंट कर रहे हैं तो लाजमी आप खुदकशी में लिखे जाएंगे अल्लाह के यहाँ, क्योंकि कुरान की आयत है कि अपनी जानों को हलाकत में ना डालो। हाँ जी। अजान में मोहम्मद साहब का नाम लिया जाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, और आदमी नमाज में होता है तो उसके बाद उसको वाजिब है दुरुस्ती पढ़ना। इनका सवाल यह है, अजान में नबी का नाम आए और वो नमाज में हो तो उस टाइम पर नहीं पढ़ सकते क्या? बाद में वाजिब है पढ़ना? पढ़ लेना चाहिए, वाजिब तो नहीं है, क्योंकि आप दूसरी उसमें मुलविस हो। नबी की कोई बात हो रही हो और नबी का नाम आए तो आपके ऊपर यह है कि आप एक बार ज़रूर पढ़ दें। अब जैसे महफिल है, इसमें 100 दफ़ा नबी का नाम आता है, अगर आपने एक दफ़ा भी पढ़ दिया तो फ़र्ज़ किफ़ाया आपकी तरफ से अदा हो गया। आप कुछ पूछ रहे थे? इनका सवाल है, नमाज में ध्यान क्यों भटकता है? भाई नमाज में ध्यान इसलिए भटकता है कि शैतान ने अल्लाह से मोहलत मांगी थी क़यामत तक कि मैं तेरे बंदों को आगे पीछे से दाएं से बाएं से बहकाऊंगा। तो अल्लाह ने कहा ठीक है तू बहका ले, मेरे मुखलिस बंदों को नहीं बहका सकता। तो वो नमाज में वसवसे डालता है। नबी ने भी बात फरमाई कि ये सूअर की थूथली की तरह तुम्हारे दिल में वसवसे डालता है शैतान। तो वसवसे तो आते हैं, सहाबा किराम को भी आते थे, लेकिन आपने लगे रहना है। इस वजह से ना नमाज छोड़नी है आपने और ना किसी गुनाह में मुलविस होना। वसवसा आया निकल गया, कोई हर्ज नहीं। हाँ, अगर आप खुद बदख्याली करोगे और अय्याशी करोगे जहनी तौर पे, नमाज हो या वैसे भी, तो आपकी पकड़ होगी। हाँ जी, क्या कह रही? अच्छा, इनका सवाल ये है कि जैसे आदमी का इंतकाल हो गया, उसके लिए हम इसाले सवाब करते हैं तो उन तक नहीं जाता, ऐसे कह रहे हैं? मेरी बहन बिल्कुल जाता है, लेकिन ये आलम बरज़ख तक जाता है। उनका चैप्टर जो था उनके नामाए अमाल वो बंद हो चुका। अब वो जो करके गए उसका हिसाब किताब क़यामत में होगा, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी क़यामत तक की अभी बाकी जो है ना, कब्र से लेके क़यामत तक की जो आलम बरज़ख कहलाता है, ये इसमें अगर बदरू हुई तो आपका जो भी इसाले सवाब होगा वो उनके उस अजाब में कमी करा देगा, और अगर अच्छी रूह हुई तो उनकी ऐशो इशरत में और बढ़ोतरी करा देगा। लेकिन ये होगा तभी तक जब तक वो चैप्टर नहीं खुलता उनका, जो अल्लाह ने अब बंद कर दिया नामाए अमाल, और वो उस दिन खुलेगा जिस दिन क़यामत बर्पा होगी और मालिक यौमुद्दीन अल्लाह यानी ये उसका हिसाब किताब खोलेंगे, सबका बताएंगे किसने क्या किया। लड़का शिया और लड़की सुन्नी का निकाह हो गया, दोनों अपने मसलक पर चलते रहे, बच्चे माँ के बताए रास्ते पर चलें, तो क्या बच्चे सुन्नी हैं या शिया हैं? इनका सवाल ये है कि शिया सुन्नी का निकाह हुआ, बच्चे माँ के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, तो बच्चे शिया हैं सुन्नी हैं? भाई मुसलमान हैं। शिया सुन्नी जो है ना, ये सब बाद में बने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद। आप तो ये देखो ना, आप किसी भी कुरान में सूरह अनाम आयत नंबर 159 में अल्लाह ने कहा कि नबी जो लोग गिरोह गिरोह हो गए तेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। मेरे उस्ताद मोहतरम तो ये कहते हैं इरफानुल हक साहब कि शिया वो हैं जिनका दिल सिया और सुन्नी वो हैं जिनका दिमाग सुन है। इसलिए हमें मुसलमान होना है, ना कि हमें किसी गिरोह में बंटना है। कुरान में भी अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे जो कबीले हैं मैंने तुम्हारी पहचान के लिए बनाए, ना कि इसलिए कि तुम दुश्मनी पैदा करो। दोनों का निकाह बिल्कुल दुरुस्त है, उनसे जो बच्चे हो रहे हैं वो आप शिया कह लो सुन्नी कह लो, असल में तो मुसलमान हैं जी। आप घर पर नमाज़ पढ़ने को कहते हैं, जबकि हदीस में घर पर नमाज़ पढ़ने पर सख्त वही है। भाई इनका सवाल ये है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ भाई नमाज शुरू कर दो, चाहे घर पे पढ़ो चाहे फ़र्ज पढ़ो, जबकि हदीस में घर पे नमाज़ पढ़ने वालों के लिए सख्त वही है। बात बिल्कुल ठीक है, मगर मैं इस तरह से नए नए लोगों को फंसाता हूँ कि किस तरह से वो शुरू हो जाए।
और उसके बाद फिर वो मस्जिद भी पहुंच जाएंगे। भाई देखो, नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। नबी ने फरमाया जो मस्जिद में पढ़ेगा उसका 26 गुना ज़्यादा सवाब है, लेकिन जो घर पे पढ़ रहा हो कम से कम वो छोड़ने के गुनाह से तो बच गया है। तो वो बेवकूफ़ी, आपको अगर एक का 26 मिले या 27 मिले आप छोड़ दोगे? तो लेकिन कम से कम आप एक तो ले लो कम से कम, जब दिल लगने लगे, माइल हो जाए दिल नमाज की तरफ, मस्जिद पहुँच जाना। दूसरे इसका एक और पहलू भी है। देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में घर पे नमाज़ पढ़ने की जो वईदें आई ना, और नबी ने फरमाया ऐसे घरों को आग लगा दूँ जो घरों में नमाज़ पढ़ते हैं, तबीयत चाहती है गिरोह बनाऊँ, उन घरों को आग लगा दूँ। तो वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद थे मस्जिद में और इमामत कराते थे। अगर कोई एक आदमी भी नबी की इमामत से इनकार करता है ना, तो वो बिल्कुल फारिग है ईमान से। अब नबी नहीं पढ़ाते नमाज, और अब इतनी दुनिया फैल गई। वो बहुत छोटा सा इलाका था मदीना, 5000 की सारी आबादी थी। जैसे एक मोहल्ला है ना आपकी, ये रसूलपुर की आबादी 5000 से ज़्यादा होगी, तो वो इससे भी छोटा इलाका था। तो वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने पे मारा मारी थी। कुरान की आयत है कि जब तुम जंग में हो तो एक गिरोह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक रकात पढ़ ले, एक गिरोह हथियार लेके खड़ा रहे, फिर दूसरा गिरोह नमाज पढ़े और पहला गिरोह हथियार लेके खड़ा हो जाए। मतलब यहाँ तक नबी को वहाँ भी नहीं छोड़ा अल्लाह ने कि जमात कराएं, और नबी के पीछे जो सादत है जमात की वो न छोड़ें किसी भी कीमत पे। लेकिन अब जो ज़माना है, अब आप अगर किसी से ये कहोगे भाई अमेरिका में तू बाजमात नमाज पढ़, क्या करेगा? छोड़ देगा नमाज। इंग्लैंड है, नोएडा है, गाजियाबाद है, जहाँ मस्जिद ही नहीं है। तो कम से कम आप तरगीब तो दिलाओ, नमाज से जोड़ो। एक नमाज छोड़ने का जानबूझ के अगर मैं आपको अजाब बता दूँ, आपके रोंगटे खड़े हुए, मतलब मैं तो बात करते हुए मेरे रोए खड़े होते हैं। इतना बड़ा गुनाह है। नबी ने कभी नहीं छोड़ी, उनकी बीवियों ने, उनकी बेटियों ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। हाँ जी, कौन? बिल्लियाँ क्यों रोती है रात को? इनका सवाल ये, रात को बिल्लियाँ क्यों रोती हैं? हैं? इनका सवाल ये, रात को बिल्लियाँ क्यों रोती है? असल में बेजुबान जानवर हैं, इन्हें जो तकलीफ होती है रोटी बयान कर सकते हैं। मान लो किसी का कोई बच्चा उठा के ले गया, बच्चा मर गया, या सर्दी है, या कोई उसकी चोट लग गई, तो वो इसलिए रोती हैं। हम नहीं समझ सकते उनकी ज़बान को, न उनकी तकलीफ को। आपसे बन पड़े उनको आप खाना खिला दो, हो सकता है भूखी हो, तो जितना भी आपसे बन पड़े इन जानवरों का साथ दो। क्योंकि देखो रहमतुल आलमीन कहा नबी को, पूरी आलमों के लिए रहमत, पूरी मखलूक के लिए, ये नहीं कि सिर्फ इंसानों के लिए। हुजूर तो नबातात के लिए भी ये हुक्म देते थे जंगों में पेड़ों को ना काटा जाए, किसी को कोई नुकसान इस तरह का ना पहुँचाया जाए। तो नबी तो पूरी मखलूक के लिए रहमत थे। आपको इनका सवाल ये, मरूम वालिदैन के लिए इस्तग़फ़ार करने से क्या जन्नत में दर्जे बुलंद होते हैं? भाई दुआ से होते हैं, इस्तग़फ़ार से तो आपके गुनाह माफ़ होंगे, उनके नहीं। इनका सवाल ये, प्लॉटिंग में कमीशन लेना देना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। ये पता नहीं कौन सी हदीस से ये लोग निकालते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि ये कहते हैं एक तरफ का जायज़ है, एक तरफ का। कहाँ लिखा हुआ एक तरफ का जायज़ है? आप दोनों तरफ मेहनत कर रहे हैं। आप इधर उसे पटा रहे हैं एक पार्टी को, इधर दूसरी पार्टी को टाइम दे रहे हैं, आप चक्कर काट रहे हैं उनके, तो आपका कैसे नाजायज़ हो जाएगा? बिल्कुल जायज़ है, दोनों तरफ आप सर्विस दे रहे हैं। हाँ जी, बच्चा कब तक यतीम है, कब तक किफ़ालत करें? इनका सवाल ये, बच्चे कब तक यतीम है, उनकी किफ़ालत कब तक करें? भाई जब तक वो बालिग नहीं होते, कमाने लायक नहीं होते, जब तक आप उनकी किफ़ालत करो, जब तक वो यतीम है उनके सर पे हाथ रखो, आपको उसका सवाब मिलेगा। लेकिन जब वो जवान हो गए और अपना कमाने खाने लगे तो फिर वो यतीम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी उम्र का आदमी यतीम कहलाएगा, मेरे ना माँ और न बाप, लेकिन फिर भी मैं तो अब तो जब मैं खुद मुख्तार हूँ तो अब मैं यतीमों में नहीं गिना जाऊँगा, बल्कि जो मासूम बच्चे होते हैं उनका हुक्म है। अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की इजाज़त में क्या फर्क है? इनका सवाल यह है, अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की इजाज़त में क्या फ़र्क है? बिल्कुल यही जो आज आके आएगा। अल्लाह की मर्जी तो यह है कि लोग जन्नत में जाएं, लेकिन अल्लाह की इजाज़त यह है कि कोई सा भी रास्ता चुन लो। मैंने तो दोनों रास्ते बना दिए, चाहे तो मेरा कुफ्र करो, चाहे मेरा शुक्र करो, लेकिन अल्लाह की मर्जी ये है कि आप शुक्र करें। ये सूरह ज़ुमर आयत नंबर 7 पढ़ लेना, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। 39 नंबर सूरत है सूरह ज़ुमर, उसकी आयत नंबर 7। अल्लाह ये कहता है कि मैंने तुम्हें पैदा कर दिया और तुम्हें रास्ता बता दिया, लेकिन मैं राज़ी नहीं हूँ इस बात पे कि तुम कुफ्र करो, बल्कि अल्लाह ये चाहता है कि वो सीधे रास्ते पे रखे लोगों को, जन्नत बनाई इसीलिए, इतनी बड़ी जन्नत। फजर की नमाज की
जो वहाँ जो इशराक की सुन्नत है उन्हें पढ़ने से मकबूल के जवाब मिले उनका उम्रे का इनका सवाल यह है इशराक की सुन्नतें पढ़ने से क्या मकबूल हक उम्र का नफिल, हाँ हाँ उनका सवाब मिलता है। भाई रिवायतों में इस तरह की बातें बुजुर्गों ने कही तो है, लेकिन आप ये समझ लो कि सब जो है तरगीब दिलाने वाली चीज़ें हैं। असल तो आप जब लोगों को माफ़ करेंगे, लोगों के हक अदा करेंगे, तब आपको मकबूल हज और मकबूल उम्रों के सवाब मिलेंगे। ये तो सारी वो रिवायतें हैं कि आपने 2 नफिल पढ़ दिया, ऐसा थोड़ी है कि उसके बराबर हो जाएगा कि जो इतनी मेहनत करके इतना पैसा खर्च करके जा रहा है। ये तरगीब दिलाने के लिए हैं चीज़ें। क्या खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं? इनका सवाल ये क्या खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं? भाई पहले तो इल्लत समझो बैठ के पेशाब करने की। नबी ने क्यों हुक्म दिया बैठ के? क्योंकि उस टाइम मिट्टी होती थी, कच्ची ज़मीनें होती थी, छींटे आने का खतरा नहीं था। अब अगर आप बैठ के पेशाब करते हो और आपके चेहरे पे या कपड़ों पे छींटे आती है तो आप पकड़े जाओगे। अब यूरिनल ऐसे बन गए हैं कि लोग खड़े होकर पेशाब करें और टिश्यू से इस्तंजा कर लें, बाद में जहाँ पानी मिले सुखा लें। लेकिन वहाँ भी अगर आप बैठ के पेशाब करोगे और आपके छींटे आ गई, मैं अपनी बात बताऊँ आपको, मुझे किस तरह से फिर मैंने इसकी तहकीक की। यहाँ मस्जिद कमगरान है, उसमें मैं एहतिकाफ करता था, तो मैं कोशिश करके एक दिन मैंने पैंट पहन रखी थी, कोशिश करके बैठा और जब मैंने पेशाब निकला ना बहुत तेज़ी से, तो सामने जाके दीवार पे लगा और चेहरे पे छींटे आ गई। आप देखो कितनी कबाहत की बात है। तो तब मैंने फिर तहकीक की, हुजूर ने खड़े हो गए पेशाब किया ऊंचाई की जगह पे। तो इसलिए जहाँ जैसा मौका हो वो करें। असल तो छींटों से बचना मकसद है पेशाब की, मकसद खड़े हो गए बैठ के पेशाब करना नहीं है। अगर आपको बैठ के सहूलियत से बहुत अच्छी तरह मिलता है पेशाब करना है तो आप सुन्नत भी अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ छींटे आपके कपड़ों में आई, वहाँ अपने ऊपर जबरदस्ती नहीं करनी है आपने। बल्कि आजकल ऐसे यूरिनल बन गए, जो लोग जहाज़ से सफ़र करते हैं स्टेशनों पे, वहाँ खड़े होकर आप पेशाब करें, टिश्यू पेपर जेब में रखें, इस्तंजा सुखाएं, दैट्स ऑल, आपका इस्तंजा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मग़फ़िरत की दुआ जिंदा लोगों के लिए भी की जा सकती है? इनका सवाल है क्या मग़फ़िरत की दुआ जिंदा लोग बिल्कुल अपने लिए करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दे। मग़फ़िरत कहते किसे हैं पहले तो ये समझो ना। मग़फ़िरत कहते हैं पर्दा डालने कि अल्लाह हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल दे। आप यहीं से मग़फ़िरत मांगो ना, दुनिया में भी और आखिरत में। मान लो अल्लाह ने आपको वहाँ बुलाया और कई अरबों खरबों लोग इकट्ठे होंगे, पहले आदमी से लेकर आखिरी आदमी तक, और ये बताया अल्लाह पाक कि ये फ़ला फ़ला शख्स फ़ला इब्न फ़ला है, इसने इतनी बार ज़िना किया, इसने इतनी बार चोरी की, इसने इतनी बार जो है वो लोगों का हक मारा, और इसने फिर आखिर में तौबा कर लिया और मैंने इसे बिल्कुल माफ़ कर दिया। कितनी बेइज्जती की बात है। मग़फ़िरत कहते हैं कि अल्लाह आपका पर्दा ही डाल दे सारे गुनाहों पे और कहते हैं कि मैंने इसे माफ़ करा, मतलब ये बयान ही ना करें। इसलिए हमेशा अपने लिए मग़फ़िरत मांगेगा। और यहाँ आप देखो ना, आपको सबको अपने गुनाह पता है। अगर अल्लाह उन पर पर्दा ना डाले तो आप एक कदम बढ़ सकते हो, आपकी कोई इज्जत रह जाएगी। जो हमारे सफ़ेद कपड़े हैं, इन पर कितने धब्बे हैं हमें खुद पता है, हमारी रूह पे कितने धब्बे हैं हमें पता है। तो इसलिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर करा करो दुनिया से ही, कि अल्लाह पर्दा डाले रखना, इज्जत को संभाले रखना हमारी। ये जो नमाज़ पढ़ाते हैं मस्जिद में या अजान देते हैं मस्जिद में, इनकी उजरत देना सही है? इनका सवाल ये नमाज़ पढ़ाना और अजान देने की उजरत लेना सही है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई। हाँ, ये कस्टोडियन की तरह से अगर मस्जिद की सफाई, मस्जिद की देखभाल और अपने वक्त का तयन कर लेंगे, भाई हम वक्त आते हैं, अगर ये नियत कर रखी ना कि हम नमाज़ पढ़ाने के पैसे ले रहे हैं तो नाजायज़ है बिल्कुल। इसके बारे में फतवा भी है। आजकल तो असल में ये सब चीज़ें आम सी हो गई ना, लोग पूछते नहीं ना बताते हैं। तो ऐसे ही इमाम हो गए, ऐसे ही हम मुक्तदी हो गए, तो मालूमात ही नहीं है। तो पैसे जो हैं वो नमाज़ पढ़ाने के तय करते हैं लोग, बिल्कुल नाजायज़ है अजान देने के भी और नमाज़ पढ़ाने की। हदीसों से साबित है बात। हाँ, कुरान पढ़ाने के, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार ये मामला आया कि कुछ सहाबी थे सफ़र में, तो एक को किसी ने सांप ने काट लिया एक के, तो उस कबीले की लड़की भागी हुई है कि मेरे बाप को सांप ने काट लिया। एक सहाबी गए, उन्होंने जाके दम किया उसमें और वो असर उसका ख़त्म हो गया जहर का। तो उसने बहुत बड़ा रेवड़ जो है वो बकरियों को दिया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात पहुँची तो उन्होंने पूछा भाई काहे का दम दिया? कि जी अलहम्दुल शरीफ कुरान का हिस्सा है, आपको पता है। तो हुजूर ने कहा तुझे कैसे पता इसमें शिफा है? मैं तो दम कर दिया, अल्लाह ने शिफा दे दी। तो हुजूर ने कहा ठीक, बिल्कुल ये जायज़ है जो तूने रेवड़ लाए हो, तुम इसमें मेरा भी हिस्सा लगाओ। तो कुरान पढ़ाने का, ट्यूशन पढ़ाने के पैसे लेना जायज़ है बिल्कुल, और ये बेहतरीन उजरत है।
क्योंकि आप अल्लाह का कलाम स्प्रेड कर रहे हैं। लेकिन नमाज पढ़ाने की उजरत लेना, अजान देने की उजरत लेना बिल्कुल नाजायज़। मेरे नज़दीक तो ये इमाम हजरात रखने ही ठीक नहीं है। आप जो मोहल्ले का आदमी हो, जो वक्त पे खड़ा हो जाओ, नमाज पढ़ा दे, कोई ज़रूरत नहीं है। खुद मस्जिदों की सफाई करें। लेकिन अगर कोई इमाम है भी तो उन्हें मस्जिद की सफाई, मस्जिद की देखभाल और मस्जिद की रखवाली, इसके पैसे मिलने चाहिए उन्हें। जी भाई, यतीम किसे कहते हैं और मिस्कीन किसे कहते हैं? इनका सवाल ये, यतीम किसे कहते हैं, मिस्कीन किसे कहते हैं? यतीम तो वो होता है भाई मासूम बच्चा जिसके माँ बाप ना हो या बाप ना हो, और मिस्कीन वो होते हैं जो मान लो किसी की 50,000 तनख्वाह है और 8 बच्चे हैं, इस महंगाई के दौर में उससे वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो वो मिस्कीन कहलाएगा। कुरान में इनका जिक्र है, सूरह तौबा आयत 60, जो ज़कात की मदे बयान की ना, उसमें मिस्कीन लफ्ज़ आया। तो मिस्कीन वो है जो तमाम मेहनतों के बाद भी अपने बच्चों का पूरा ना कर सके। मान लो कोई 20,000 कमा रहा और उसके घर का खर्चा 70,000 है और वो मारा फिरता है बेचारा, और बच्चे पालने में उसे बड़ी दिक्कत आ रही, बच्चे पढ़ा नहीं पा रहा, तो ये मिस्कीन में आएंगे। क्या जैसे हमारी 5 नमाजें छूट गई तो उनको अगले दिन अदा कर सकते हैं? इनका सवाल ये, 5 नमाजें छूट गई कि अगले दिन अदा करनी चाहिए? कुरान ये कहता है कि तुम्हारे ऊपर नमाज मुकर्ररा वक्तों पे फ़र्ज है। ये तो खेल बनाना होगा नमाजों को। कैसे कज़ा हो गई यार? इतनी हिम्मत ही कैसे आ गई आपके अंदर कि आपने नमाज कज़ा कर दी? आपने अपने आका का हुक्म नहीं माना। देखो एक बात बताऊँ मैं आपको, हमारा जो रिश्ता है ना अल्लाह से, वो आका गुलाम का है। मैं आपको एक बात बताऊँ आज, हुक्म मानना किसे कहते हैं? एक आपने नाम सुना होगा अयास, महमूद गजनबी नाम सुना, उनके गुलाम थे अयास। वो बहुत उनके मतलब सबसे बड़ा, हज़रत बिलाल के बाद मैं अगर किसी को मानता हूँ जो मैंने पढ़ा है तो वो अयाज ही थे गुलामों में। तो एक बार उनकी कारकर्दगी से खुश हो गए महमूद गजनबी ने उन्हें अपने दरबार में जगह दे दी। तो वहाँ जो और दरबारी थे उन्हें बड़ी अजीब से लगी कि गुलाम तो गाली थी ना उस ज़माने में, कि गुलाम को इन्होंने अपने बराबर में बिठा लिया, दरबारी बना लिया। तो एक दरबारी ने एतराज़ किया महमूद गजनबी के सामने, तो वो थोड़ा सा सबूत फरमाया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने 2 फल मंगाए और दोनों फल एक उस दरबारी को दिया और एक अयाज को दिया। दरबारी ने उस फल को काटा और थोड़ा सा चखा और वो उसे साइड में रख दिया। अयाज को फल दिया वही वाला, उसने अयाज ने काटा, खाया, बड़े मज़े लेके खुशी पूरा फल ख़त्म कर दिया। तो फिर महमूद गजनबी ने उससे पूछा, साहब जो दरबारी था, कि भाई तूने क्यों नहीं खाया? कि जी तू बेइंतहा कड़वा फल है, मैं थोड़ा टुकड़ा खाया, मुझे पसंद नहीं आया। फिर उससे पूछा अयाज से कि तूने किस तरह खा लिया जब इतना कड़वा है? कि जी आप सारी उम्र से, बचपन से मैं आपके पास हूँ, आप इतनी नेमतें मुझे देते हो, इतनी इज्जत देते हो कि अपने बराबर में बिठा लिया, और इतनी बढ़िया नेमतें, इतनी मज़ेदार चीज़ें मुझे खिलाते रहते हो। आज अगर आपने एक कड़वा फल मुझे दे भी दिया तो मैं इसे एक तरफ रख दूँ? ये है बात, हमें अल्लाह के हुक्म इस तरह से मानना है। आपको सारा दिन में उसने 1 घंटा सिर्फ नमाजों का, बल्कि मैं तो कहूँ अगर आप फ़र्ज पढ़ें तो आप 40 मिनट भी नहीं लगते 5 नमाजों में। तो अगर आप सिर्फ 40 मिनट भी 24 घंटे में अल्लाह को नहीं कर सकते तो आप काहे के बंदे हो और अपने आका की बात ही नहीं मान रहे, कैसे गुलाम हो? हाँ जी, जो कोई गलत काम से पैसा कमा रहा है तो उसके यहाँ खाना जायज़ है ना जायज़? इनका सवाल ये, कोई गलत काम से पैसे कमा रहा है उसके यहाँ खाना जायज़ है ना जायज़ है? भाई सिर्फ अगर वो उसी काम से कमा रहा, हराम कमाई है उसकी, फिर तो नाजायज़ है। लेकिन अगर वो और भी काम साथ में करता है तो इस हुस्न ज़न के साथ आप उसके यहाँ खाना खा सकते हो कि जो उसकी हलाल कमाई है मैं उसमें से खा रहा हूँ। इनका सवाल ये है, नफिल भेज रहा हूँ किसी को इसाले सवाब की, क्या ये सही है नहीं सही है? भाई इसका आप नफिलों के बाद दुआ तो कर सकते हो। नफिल तो आपके खाते में लिखे जाएंगे, किसी के खाते में लिखे जाएंगे। आप नफिल पढ़ने के बाद दुआ करो, इस नियत से सलातुल हाजात के नफिल पढ़ो और उसके बाद फिर दुआ करो। आप कुछ पूछ रहे थे? एक आदमी शादी में गया वलीमे में और उसने लिफाफा दिया, इस नियत से कि इसने भी मेरे शादी में लिफाफा दिया था और ज़्यादा दिया पैसा, उसने 2 रुपये दिए, इसने 5 रुपये दिए। क्या एक स्कूल है? बड़ा
अच्छा सवाल है भाई इनका। शादियों में पैसे लेना देना लिफाफे और इस नीयत से बढ़ा के देना कि इनने कम दिए थे मैं ज़्यादा दूंगा, क्या ये सूद है? बिल्कुल सूद है भाई ये। अगर आपके जहन में नहीं है ये बात और आप अपनी हैसियत के हिसाब से दे रहे हैं कि भाई मैं गिफ्ट दे रहा और उसे नीचा दिखाना मकसद नहीं है, उसने 200 दिया आपने भी 200 दिया 300 दे दिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इस नीयत से देना कि मैं इसके यहाँ 200 दूंगा, ये अमीर आदमी है मेरे यहाँ 500 देगा तो ये सूद लेना होगा। और उसे नीचा दिखाने के लिए 500 देना, या जैसे मैं देखता हूँ अक्सर शादियों में जो लिस्टें बनती हैं, वो लिस्टें बनती इसीलिए हैं, पूरे रजिस्टरों में लिखा जाता है कि फलां ने 200 दिए, फलां ने 50 दिए और फिर उसी हिसाब से उन्हें दिए जाते हैं। ये सब गुनाह के काम है। तोहफे देने लेने को तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रमोट किया है, लेकिन इस तरह हिसाब रखने को नहीं कहा। आपको किसी ने कुछ दिया, आप ले आप भूल गए, 10 साल बाद उसके यहाँ शादी हुई, आपने कुछ दिया, उसे पता ही नहीं मैंने क्या दिया था। ये तो है, आपने पूरा रजिस्टर मंगा रखा, उसके बाद फिर मंगा के देखा भाई इसके यहाँ शादी है, ये क्या दे गया था। ये तो गुनाह है, आप जिल्लत बरसा रहे हैं उस पर, आप दलील कर रहे हैं उसे कि, और फिर यार ये तो इतना बड़ा आदमी, जब रजिस्टर में लिखा होगा कि इनने तो मुझे सिर्फ 2100 रुपये दिए, देने तो चाहिए थे 21,000, ये कीमत में शुमार हो गई और आपके लिए 2 लाख का काम। ये शादी के बाद जो जिक्र चला, ये ऐसा होता है जब आदमी खाना खा के जाता है तो उसको जरिए दिया जाता है, जो मैंने लिफाफा दिया, हमें खाना ठीक बन गया तो कहाँ वो नहीं आए, ताकि सब लोग देख रहे जा रहा खा के ना कुछ दिया ही नहीं अभी तक, तो बेचारा शर्मिंदगी महसूस करता है, फिर वो कुछ ना कुछ देता है उसको। इनका सवाल यह है कि किसी को शर्मिंदा करना चाहते हुए तो वो शर्मिंदा महसूस करके दे तो क्या ठीक है, बिल्कुल नाजायज़ है बात, कोई उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोड़ी है। आपने दावत की, ज़रूरी नहीं है कि वो तोहफा दे, हालांकि तोहफा देने की तरगीब दिलाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निकाह हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उम्मे सुलैम साहबिया थी, उन्होंने अपने बेटे के हाथ बहुत बड़ा थाल जो है खजूर के हलवे का बना के भेजा। ये मैं इसलिए सुना रहा, आपको मज़ा आ जाएगा इस बात। तो तोहफा भेजा और ये कहा कि हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम भी पेश करना और ये कहना कि ये तोहफा है आपके निकाह के। तो हुजूर ने कहा भाई अबू हुरैरा को या किसे बाहर खड़ा कर दिया ना, हज़रत अनस को शायद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुलाम थे, कि जो मिले उसे रोकता चला जा। इतना बड़ा थाल था, तो इतने सहाबी इकट्ठे हो गए, सड़क पे जो जा रहा था वो रोक रहे थे, कि वहाँ पूरा घर भर गया। और फिर हुजूर ने वो थाल बीच में रख दिया और ये कहा भाई 10-10 आदमी आते रहो और खाते रहो। लगभग 300 आदमियों ने उस थाल में से खाया। उसके बाद हुजूर ने कहा कि भाई अनस इसे थाल को उठा और औरतों में ले जा, और फिर औरतों ने भी सैर होकर खाया। कितनी बरकत उसमें हुई होगी आप अंदाजा करो। ये मैं इसलिए सुना रहा कि तोहफे लेने देने की तरकीब, हुजूर तोहफे लेते भी थे और हुजूर ने ये भी कहा कि तोहफा लिया करो तो दिया भी ज़रूर करो, तो तोहफा देना भी चाहिए, लेकिन अगर किसी की हैसियत नहीं है कि उस पर ज़बरदस्ती नहीं करना। या कोई मान लो कंजूस आदमी है, आप उसे दलील कर रहे हैं, तो ये बेहतर बात नहीं है। आपने दावत करी, उन्होंने खाना खाया, नहीं देना चाहता वो, नहीं उसकी हैसियत है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन दलील करना है तो गुनाह है। हाँ, किन्नर क्यों बना? किन्नर क्या बने? क्यों बनाएगा? इनका सवाल है किन्नर क्यों बनाए गए। भाई ये तो लोगों ने खुद ही बनाया अपने आप को किन्नर। नबी की तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह की कोई मंशा इस तरह की नहीं है। कुरान में तो अल्लाह ने कहा कि अपनी जो जीन्स है उसमें किसी किस्म की कोई तहरीफ ना करो, मतलब बदलाव ना करो। अल्लाह की जो तख्लीक है उसमें किसी किस्म का बदलाव ना करो। तो ये तो अल्लाह की पूरी तख्लीक को बदल देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक किन्नर था मदीने में, हुजूर ने उसे जिला बदर करा दिया, निकलवा दिया, जंगल में फिकवा दिया। ये तो हम, क्योंकि यहाँ इस्लामी शरीयत तो है नहीं, हम इनका कोई बिगाड़ नहीं सकते, ये वरना बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है मामला बेटे। लेकिन ये सब जैसे लोग शराब पीते हैं, जैसे और गुनाह है वैसे ये भी गुनाह है, लोग बन जाते हैं। ये हदिया किसे दे सकते हैं? इनका सवाल ये हदिया किसे दे? हदिया पहले तो समझो ना, किसे कहते हैं? हदिया कहते हैं तोहफे को, किसी को भी दे सकते हो, चाहते हो मुझे दे देना। हाँ जी। अगर हम ताज्जुद की नमाज में वितर पढ़ते हैं तो फ़र्ज़ की अजान से कितनी देर पहले तक पढ़ सकते हैं? ताज्जुद की अजान में वितर पढ़ते हैं, फजर हाँ, फजर की अजान से कितनी देर पहले तक पढ़ सकते हैं? इनका सवाल ये फजर की अजान से कितनी देर पहले तक वितर पढ़ सकते हैं? 3 मिनट पहले तक, क्योंकि वितर 3 मिनट के होते हैं। अगर किसी ने नाजायज़ तरीके से पैसे कमाए और आगे उसने इन्वेस्ट कर दिया उनको, तो जो उससे कमाई होगी वो नाजायज़ है जायज़ है? इनका सवाल यह है, नाजायज़ तरीके से पैसा कमाया, उसे इन्वेस्ट किया, तो उसकी कमाई जो है जायज़ है नाजायज़ है? बिल्कुल नाजायज़ है भाई। लेकिन अगर उसने तौबा कर ली तो फिर वो जायज़ भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। फिर वो अल्लाह की राह में बांटना शुरू कर दे
बिना किसी सवाब की नियत के, तो उसके लिए सदका बन जाएगा इंशाल्लाह। अगर ना बांटे तो अगर ना बांटे तो हराम में मुलविस है, हराम कमाई। भाई देखो ना, आप वो अगर सदका भी करे ना अल्लाह की राह में उस कमाई से, तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। उसकी औलादों की भी उसकी औलादों तक, औलादों के लिए नहीं, गुनाह उसने किया वो तो औलादों के लिए छोड़ के गया। अगर अल्लाह उसकी औलादों को पता है कि हमारे बाप की कमाई सट्टे की या जुए की या हराम की थी, अगर वो उसे फिर भी इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनकी ही पकड़ होगी। लेकिन अगर वो इस्तेमाल नहीं करते, उसे बांट देते हैं, हमारे बाप से गलती हुई, अल्लाह से तौबा भी करें, अपनी हलाल कमाई नौकरी करें, कोई हरज नहीं बिल्कुल। लेकिन अगर वो भी उसे उसी तरह मुलविस होते हैं तो उनकी भी पकड़ होगी, जिन्हें पता होता है, क्योंकि बालिग होने के बाद वो मासूम नहीं रह गए, उन्हें पता है कि हमारा बाप जो है सट्टे का कारोबार करता था, उन्हें उस पैसे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो हराम पैसा है उनके लिए। गाली देने से या खाना खाने से वजू टूट जाए। इनका सवाल ये गाली देने से या गाना गाने से नहीं, कोई वजू नहीं टूटता, गुना मिलेगा गाली देने से। अक्सर लोग काम पे बैठते हैं, यूट्यूब को चलाते हैं किरात वगैरह और अपने काम में मशगूल हो जाते हैं, तो क्या कुरान की बेहुरमती है? इनका सवाल ये है, किरात सुनना और अपने काम में लगे रहना क्या कुरान की बेहुरमती है? बिल्कुल बेहुरमती है भाई। कुरान की एक आयत यह है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, गौर से सुनो, ताकि तुम पे रहमत हो। तो वो तो उस आयत की मजाक उड़ा रहे हैं, बिल्कुल पकड़ में आएंगे। इससे तो बेहतर यह है कि उसे बंद करें, अपना काम करते रहें, जब वक्त मिले सुकून से सुनने की चीज़ है कुरान। मैंने तो अक्सर देखा लोग तस्बीह पढ़ते रहते हैं, कुरान की लोग तिलावत कर रहे हैं। वहाँ पे हमारी मस्जिद में सुबह को तर्जुमा होता है कुरान का, इमाम साहब एक रुकू की तिलावत करते हैं, लोग तस्बीह पढ़ते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। अब जब ये आयत ही नहीं पता कि कुरान ये कहता है, तो फिर उनके लिए उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। ये वो सबसे से दीन की बात या कुरान की कोई आयत डिलीट कर देते हो, डस्टबिन का डब्बा बना दे, तो गुनाह तो क्या है? इनका सवाल ये है, कोई डस्टबिन का डब्बा बना हुआ आता है मोबाइल में, डिलीट करने पे गुनाह तो नहीं है? नहीं भाई, वो तो उनका स्टाइल है, वो तो वेद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। वजू का पानी बच इनका जी जैसे साजिद की नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाह पढ़ना चाहिए, उसमें 12 की 11 रकात लगाते चले जाए, नमाज की तरफ पढ़ रहे। समझ गया मैं। इनका सवाल ये है कि तहज्जुद की नमाज में क्या पर्टिकुलर कोई सूरत, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद 11 बार, फिर 11, फिर 10 बार, फिर 9 बार, इस तरह पढ़ना ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिदअत है मेरी बहन। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि आप जौन सी मर्जी सूरत पढ़ें जो आपको याद हो, और ज़्यादा ज़्यादा कुरान पढ़ें। कुरान ये कहता है फजर का टाइम कुरान पढ़ने के लिए बहुत मौसर है, तो आप जितना, और हुजूर को भी हुक्म दिया कि खड़े होकर कुरान की तिलावत किया करो, ये तहज्जुद की नमाजी का हुक्म है। तो आपको जितना कुरान याद हो तो शुरू से आप पढ़ना शुरू करो, लंबी लंबी सूरतें पढ़ो। ज़्यादा सूरतें याद ना हो तो 10 सूरतें याद हो, 10 ही पढ़ दो हर रकात में, तब भी चलेगा इंशाल्लाह। लेकिन ज़्यादा कुरान पढ़ा करो। लेकिन ये नहीं ठीक है कि आप रोज़ की रोज़ पहले 12, फिर 11, फिर 10, ये लोगों की बनाई हुई चीज़ें हैं, नबी ने नहीं बताई इस तरह की बात। आप कुछ पूछ रहे थे? वजू का पानी मस्जिद हाँ, इनका सवाल है वजू का पानी मस्जिद में गिरना ठीक है? भाई देखो, वजू का पानी जो है वैसे तो वो नापाक होता है, नापाक इस नियत से कि आप उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप लोगों को रुमाल या तौलिया अपने पास लेके जाना चाहिए। मस्जिदों की सफाई का जो है वो ईमान का हिस्सा है, तो इसलिए आपके वजू का पानी मस्जिदों में टपकना नहीं चाहिए। आप ये तो वहीं झाड़ के जाएँ वजू खाने में ही। मैंने देखा अक्सर लोग जो है वो दाढ़ियों के पानी और इस तरह झटके देंगे, ये सब गुनाह है। ये बैतुल्ला कहलाया मस्जिद को कुरान ने, अल्लाह के घर। अल्लाह के घरों में आप किसी के घर में जाके इस तरह अपना पानी छिड़क के दिखाओ मुझे, किसी ढंग के आदमी के घर में, आपको उल्टा टंगवा देगा। आप अल्लाह के घर में जाके इस तरह से करते हो और सफ़े गंदी करते हो, गुनाह है। आप रुमाल लेके जाओ या तौलिया लेके जाओ, उससे वजू खाने में ही अपना पानी सुखा के, या घर से वजू करके जाओ ना। नबी की सुन्नत तो घर से वजू करना है। अपना एक टॉवल बना लो, वजू करा, उससे तौलिया से साफ करा, सुकून से मस्जिद पहुंचो, देखो कितना मज़ा आता है। हाँ जी, फजर की अज़ान से पहले 3 मिनट पहले तहज्जुद की नफिलें पढ़ सकते हैं। इनका सब वो अभी तो बताया मैंने आपको, जो वितर हैं वो ही नफिल ही हैं। उससे पहले आप नफिल पढ़ो, आखिरी वितर पढ़ो। उससे आप 10 मिनट पहले भी अगर आप उठ गए, आपने 2 नफिल भी पढ़ लिए तहज्जुद के, या 2 करके 4 पढ़ लिए, उसके बाद 3 वितर पढ़ लिए, तो आपका तहज्जुद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 1 मिनट पहले तक भी आपका टाइम है तहज्जुद का। तो जैसे हम वजू से नहीं है और तस्बीह का एहतमाम कर सकते हैं? इनका सवाल ये, बिना वजू के तस्बीह पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं भाई। उठते बैठते करवटों के बल, कुरान ये कहता है कि अल्लाह को याद करते रहो। उठते बैठते करवटों के बल किसका वजू होता है? तो बिल्कुल हुक्म है, आप बिल्कुल जैसे मर्जी तस्बीहात पढ़ो, बस याद रखो अल्लाह को हर वक्त,
अब तस्वीर पढ़ना ये नहीं है कि आप तस्वीर पढ़ लें, बल्कि आप जब अपनी बीवी से बात करो तब भी ये हो कि अल्लाह मुझे देख रहा हो, याद होना चाहिए अल्लाह आपको। जब आप अपने बाप की बेहुरमती कर रहे हो तो आपको याद हो कि अल्लाह मुझे देख रहा। आप किसी अपने ग्राहक को नंबर 2 माल बेच रहे हैं ना, उस टाइम आपको पता हो कि मैं नकली माल दे रहा है, इसे अल्लाह मुझे देख रहा। ये है आपकी तस्वीर। ख्वाब में वालिदैन ने किसी खास रिश्तेदार को परेशानी में देखना है, कुछ मांगते हुए देखने, क्या कहते हैं? इनका सवाल ये है कि किसी रिश्तेदार को परेशानी में या माँ बाप को परेशानी में देखना कैसा है? भाई ये अलामत है कि वहाँ वो परेशानी में आलम बरज़ख में, उनके लिए आप इसाले सवाब करो और पढ़ पढ़ के भेजो, अल्लाह से दुआ भी करो, अल्लाह पाक इनकी जो परेशानी है उसे दूर कर दे। बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटे को ख्याल है कि मेरे अब्बा खाना खा रहे हैं और उसके उसमें वो खाना बांटे, तो सही है अगर? इनका सवाल ये है, बाप का इंतकाल हो जाए और ख्वाब में देखे कि बाप खाना खा रहे, इस उसमें बेटा खाना बांटे तो कैसा है? बहुत बढ़िया है। खाना बांटने का आपको एहतमाम करना चाहिए, बहाने ढूंढने चाहिए। क्या कह रहे हैं सराज भाई? हैं? आज कुछ चीज इनके यहाँ खाना बनाने वाले फिर खाना नहीं आएगा फिर? एक मिनट यार, ये बंद करना जरा ये वीडियो। क्या दिक्कत आई जी? जुमे की नमाज, एक मिनट है। जुमे की नमाज जैसे होती है तो नमाज से पहले टोकरियां रख देते हैं पैसों के लिए, और नमाज हो गई दुआ से पहले इमाम साहब कहते हैं कि ताउन करें और पैसा दें, और हम जाते हैं अल्लाह से मांगने वहाँ, तो ये बात सही है या? इनका सवाल यह है, मस्जिदों में टोकरी रखना, गुल्लके रखना क्या ठीक है? बिल्कुल नाजायज़ है भाई। नबी ने तो फरमाया अगर कोई वहाँ पे अपनी कोई हाजत पेश करे तो दुआ ये करो कि अल्लाह इसकी हाजत पूरी ना करे। आपने सुनी होगी शायद ये हदीस, लेकिन अब क्योंकि ये जो मिंबर है ये ऐसे लोगों के हाथ में है कि आपको बोलने का हक ही नहीं है उनके आगे, वो तो वरना गुस्सा करने लगेंगे, लड़ने लगेंगे आपसे, तो इसलिए ये बिल्कुल नाजायज़ है। देखो, मस्जिद के बाहर मांगने का हुक्म है, कोई हरज नहीं है, लेकिन मस्जिद के अंदर इस तरह से चंदे होना, मांगना और इस तरह पैसे इकट्ठे करना मेरे नज़दीक तो उस हदीस के खिलाफ है भाई, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, अगर गैर मुस्लिम के यहाँ काम कर रहे हैं तो उनके यहाँ खाना खा सकते हैं? इनका सवाल यह, गैर मुस्लिम के यहाँ काम कर रहे हैं क्या खाना खा सकते हैं? भाई काम नहीं भी कर रहे तब भी खाना खा सकते हैं। हुजूर ने गैर मुस्लिमों के तोहफे लिए भी हैं और उनके यहाँ खाने भेजे भी हैं। हाँ जी। शबरात का हलवा खा ले तो कहते हैं कि बिदत है, बरफात का हलवा खा ले तो कहते हैं ये बिदत है, तो इसके अलावा जो सिगरेट पान बीड़ी चल रही वहाँ आपने तो नहीं की, ये क्या बिदत में आएगा या नहीं आएगा? पान बीड़ी कहाँ चल रही? वो लोग वो खाते हैं गुटखे या पान बीड़ी पीते हैं, तो ये बिदत में आएगा? इनका सवाल ये है कि शब रात के हलवे खाना, बारह वफात के हलवे खाना, पान बीड़ी सिगरेट पीना, ये क्या बिदत में आएंगे? यार नहीं, ये तो सब इलाकी चीज़ें हैं, कोई हरज नहीं है इनमें। अगर हम हर चीज़ को बिदत कह देंगे ना तो फिर ये प्रोग्राम भी बिदत बन जाएगा। नबी ने तो इस तरह प्रोग्राम नहीं किया। ये तो ये कहा कि किसी ने कोई नई चीज़ शुरू की, अगर वो उसके लिए कामयाब हो गई तो उसे दुगना अजर है, और अगर वो उसमें कामयाब ना हुआ तो उसे सिंगल अजर है, लेकिन काम नेक होना चाहिए और वो फ़र्ज ना हो। अगर हम ये कह दें कि भाई ये हमारा प्रोग्राम फ़र्ज है, फिर से बिदत बन जाएगा। अब हमने इसकी 2 महीने की छुट्टी कर दी सर्दियों की, आज खाना ही नहीं बना, तो ऐसा ना हो कि हम ये सोचे तो हमारा ईमान ही ख़राब हो गया, ये फिर बिदत बन जाएगी। लेकिन अगर ये दीन का हिस्सा है हमारा, कोई हरज नहीं बिल्कुल। हाँ जी। कुछ बांटे तो ले सकते हैं, खा सकते हैं नहीं? इनका सवाल है गैर मुस्लिम कुछ बांटे तो ले सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं यार, बस शरीया चीज़ ना हो उसमें, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी इस्लाम मना करता है। मान लो कोई झटके का गोश्त हो या शराब बांटते हों या इस तरह हराम कोई चीज़ बांट रहे हों या कोई अपना प्रसाद बांट रहे हों जो उनकी इबादत की चीज़ें होती हैं, वो तो आप नहीं ले सकते। लेकिन बाकी आप तोहफे या कोई मान लो सबील लगी हुई है, पानी पिला रहे हो या कोई शरबत पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, कोई हरज नहीं है बिल्कुल। हमने लंगर खाया अभी, मैं अमृतसर गया था पिछले साल, कोई हरज नहीं है बिल्कुल। दिवाली की मिठाई इनका सवाल ये है कसीदा बुर्दा शरीफ क्या? भाई ये एक तरह के हमदो सना है, कोई हरज नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल की हमदो सना बयान करने में कोई हरज नहीं है बिल्कुल।
तो जब आप उसका मतलब समझोगे ना, वो तो अरबी में है, लेकिन जब आप उसका उर्दू तर्जुमा समझोगे तो आपको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत बढ़ेगी। तो इस तरह की तरगीब नबी ने खुद दिलवाई। जो हज़रत हस्सान बिन साबित एक शायर थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हुजूर की शान में शेर पढ़ा करते थे, हुजूर ने तरगीब दिलाते थे, खुश भी होते थे। तो बिल्कुल इसमें कोई हरज नहीं। मस्जिद में मदरसे वाले खड़े हो यहाँ दुआ से पहले ही कि भाई लेके जाइयो मैं के लेके, तो जायज है। इनका सवाल ये है, मदरसे वाले जो खड़े होते हैं क्या जायज़ है? मैंने वही तो बताया आपको, वो भी नाजायज़ है। उन्हें बाहर खड़े होना चाहिए मस्जिद के। मस्जिद में किसी किस्म की कोई मांगने का हिसाब नहीं होना चाहिए। ये तो नबी ने फरमाई कि अगर कोई अपनी कोई हाजत पेश करे तो ये दुआ करो कि इसकी हाजत पूरी ना हो। मैं तो यही दुआ करता हूँ, मैं तो अपने नबी के उसमें नाम देता हूँ। देने वाला भी गुनहगार है, ये बता दूंगा आपको बात, बिल्कुल। हालांकि सारी चीज़ें मेरी जाती हैं मदरसे में और मुझे वहाँ गुमराह कहते हैं इसीलिए, मगर आपके लिए पहले हदीस है, पहले ये लोग हैं। आपके लिए पहले अपना नबी होना चाहिए। हाँ जी। जो मस्जिद में जुमे दिन वो चलाते हैं गल्ला पैसे के लिए, वही तो सब वही बात हो रही, सब कुछ वो सब चल जाएगी, सब मना है। सब मस्जिद के कैंपस में मांगना ठीक नहीं है। ये दिवाली की मिठाई जो आती है खा सकते हैं? इनका सवाल ये, दिवाली की मिठाई जो है क्या वो खा सकते हैं? बिल्कुल, वो तो तोहफतन आ रही ना, कोई उसकी पूजा करके थोड़ी भेज रहा है। भाई आखिरी सवाल कर लो मेरे ख्याल में। हाँ जी हैं? इनका सवाल ये, सजदा सहू कब वाजिब होता है? जब आपके किसी फ़राइज़ या वाजिबात में से कोई चीज़ छूट जाए तब आपके ऊपर सजदा सहू वाजिब होगा नमाजों में। वमा अले, हाँ जी। इनका सवाल है जुमे की नमाज में सुन्नतें कितनी हैं? जुमे की नमाज में पहले जो है कोई सुन्नत नहीं है, सिर्फ ताहियतुल मस्जिद के 2 नफिल पढ़ने का हुक्म दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मैं ज़रूरी समझता हूँ। क्योंकि खुतबा दे रहे हुजूर, एक सहाबी आए और वो जैसे भी एंटर हुए उनसे पूछा, खुतबा बीच में रोक के कि तूने ताहियतुल मस्जिद पढ़ ली है 2 नफिल? नहीं, कि पढ़ो। खुतबे के बीच में कहा। और बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल ये था कि 2 और 2 करके 4 जो है सुन्नतें पढ़ा करते थे। कई बार ऐसा हुआ कोई काम हुआ तो 2 पढ़े, 2 घर जाके पढ़े। तो इसलिए आप ये समझे, सुन्नत जो है वो 2 और 2 4 सुन्नतें हैं, बाद में वो फर्जों के बाद, पहले कोई सुन्नत नहीं है। लेकिन अगर आप मस्जिद पहुंच जाते हो 2 करके, आप जितनी मर्जी नफिल पढ़ो, सब नफली इबादत। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम।